ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਨਾਣ ਭਰਜਾਈ। ਨਿਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਬਈ। ਨਿਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਪਰਦ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਨਿਰੋਲ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਹੈ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ 100 ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਬਈ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਨੇ। ਛੰਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਤ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ। ਹੁਣ ਨਿਰੋਲ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੋਹਾਂ ਚ ਮੈਚ ਛੰਦ ਹੈ ਬਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਕਾਵ ਹੈ ਬਈ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਵਰਤਿਆ ਬਈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗ ਨੇ ਉਹ ਨੇ 35 ਬਈ। 35 ਸਰਗ ਨੇ ਪਈ ਇਸ ਦੇ। ਹੋਰ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਈ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਪੇਖ ਚ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਬਈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਹਾਕਾਵ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਯੁੱਧ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ। ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਮੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ ਰਾਣੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਬਈ। ਰਾਣੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ। ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਲ ਹੋਈ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਭਈਆ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਮਹਾਕਾਵ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਬਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਤਰੰਗ। ਦਿਲ ਤਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਆ ਦਿਲ ਤਰੰਗ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿੱਕਰ, ਕੈਲੋਂ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੇਲ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਈ, ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ, ਬਿਨ ਸਫੇ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਕਰਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਕਰਨੇ ਦੀ ਕਲੀ।
दिल तरंग की अगर गल करिए छोटियां कवितावां का पहला काव्य संग्रह है किकर, कैलों दे गल लगी वेल, कोयल दे बच्चे, कावां दे आलने, बिन सफे दा फुल, होर करने दी खुशबू ते करने दी कली बई। ये जड़ियां ने दिल तरंग दे अंदर है। उस तो बाद लहरां दे हार, लहरां दे हार अगली रचना है बई लहरां दे हार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬਈ। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਿਲਕਣੀਆਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਉਸ परमात्मा ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਿਲਕਣੀਆਂ ਹੈ ਬਈ, तड़प हैगी है वो है। ये जो लहरां दा हार है 1907 तो लैके 21 दियां कवितावां दा संग्रह है। और इस जेड़ी कवि दी काव कला है अपने शिखर ते पहुंचती है। जीवन की है, बुलबुल दे राही, पुष्पावत ते चंद्रावती, बिस्मल मोर, फुंडिया तोता, कुछ लंबिया कवितावां ने, त्रेल तुपके दियां 57 रुबाइयां ते दिल तरंग दियां कुछ कवितावां ने जो इस दे विच शामिल ने बई। ते हुण आपां गल करदे हां दिल तरंग दी बई। दिल तरंग दे अंदर जड़ियां मुख मुख दिल तरंग की लहरां दे हार, हाँ बई गल कर रही सी लहरां दे हार दी बई। लहरां दे हार दे अंदर जड़ियां कवितावां शामिल ने, इस दे विच त्रेल तुपके दियां 57 रुबाइयां ते दिल तरंग दियां कुछ कवितावां ने। इस त्रेल तुपके दियां 57 रुबाइयां एक तो बई आ है, प्लस प्लस दिल तरंग दियां कुछ कवितावां ने। दिल तरंग दियां कुछ कवितावां और कुछ जड़ियां फेमस कवितावां ने उस बारे आपां लिख दईए बई। जीवन की है, बुलबुल ते राही, जीवन की है, बुलबुल ते राही पई। उस तो बाद पुष्पावत ते चंद्रावती, पुष्पावत ते चंद्रावती, बिस्मल मोर, बिस्मल मोर बई, और फुंडिया तोता, फुंडिया तोता कुदरत का कवि सी बई ते कुदरत दे मोर, चिड़ियां, पंछियां बारे, रुखां बारे, पर्वतां बारे, नदियां बारे, झरनियां बारे कवितावां ने लिखियां ने। और अध्यात्मक है, नव रहस्यवादी कवि है, अध्यात्मकता इहदे विच देखण नूं मिलदी है इहदियां कवितावां दे अंदर। इह सी लहरां दा हार बई, जिस नूं कि तीन भागां च वंडिया जा सकदा है। दो भाग है दार्शनिक विचार ते तीजे भाग च मनुखी मन की तड़प बई उस परमात्मा नूं मिलण लई। और इस दे विच जीवन की है, बुलबुल दे राही, पुष्पावत ते चंद्रावती, बिस्मल मोर बई, बिस्मल मोर ते फुंडिया तोता, ये इस दे अंदर कवितावां ने दर्ज ने। त्रेल तुपके दियां 57 रुबाइयां ते दिल तरंग दियां कुछ कवितावां इस दे अंदर शामिल ने बई। हुण उस तो बाद आपां अगली गल करदे हां भाई अगले त्रेल तुपके। त्रेल तुपके विच हुणी आपां गल करके हटे हां कि इस विच 57 रुबाइयां ने बई त्रेल तुपके दे अंदर। अगला जिहड़ा काव्य संग्रह है उसकी आपां गल करिए।
अगला काव्य संग्रह है त्रेल तुपके बई। इस दे विच 57 रुबाइयां ने जिहड़ियां कि 1909 तो लैके 21 तक लिखिया गई ने। जिवें गुलाब दा फुल तोड़न वाले नूं, बड़ी ही प्यारी कविता है। होनी, त्रेल सूरज, होश मस्ती, राव रुख, इलम ते अमल बई। इलम ते अमल अपने 12वीं जिहड़ी बोर्ड की किताब है उस दे अंदर हैगा बई इलम ते अमल। ते आप पूछी जा सकती है ते इलम ते अमल जिहड़ी है वो किहड़े काव्य संग्रह च है? वो है त्रेल तुपके दे अंदर। ते आपां नूं की करना है कि जिहड़ियां मैं सारियां कवितावां तुहानूं दस दांगा किस संग्रह के अंदर किहड़ियां कवितावां ने, परंतु तुसीं जिहड़ियां मुख कवितावां ने वो आपां नूं ध्यान रखना है बई। ते इस दे अंदर की है? गुलाब दा फुल, गुलाब दा फुल तोड़न वाले नूं, गुलाब दा फुल तोड़न वाले नूं, होश मस्ती, होश मस्ती, इलम ते अमल, इलम ते अमल है जो इस तरीके दियां कवितावां। और उस तो बाद राव रुख, दिल्ली दी एक बेनिसा समाध, राव रुख दिल्ली दी एक बेनिसा समाध, उच्ची नजर, अरशा वल नजर, क्योंकि अरशा दा कवि सी बई, अरशा वल नजर, हदों पार ना होई, दर्द देख दुख आंदा, आपे विच आप, संगीत, विछड़ियां अखां, जितवल नजर उतवल यार, अज विछोड़ा वसल अमर रस, पिंजरे पिया पंछी, वृक्ष रोशन आरा बई। पिंजरे पिया पंछी, वृक्ष बई ते रोशन आरा। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ मैं लिखतीਆਂ। बाकी ਤੁਸੀਂ सुन लो बई। गुलाब दा फुल तोड़न वाले नूं, होनी, त्रेल सूरज, होश मस्ती, राव रुख, इलम ते अलम, इलम ते अमल बई, अमल करना, दिल्ली दी एक बेनिसा समाध, उच्ची नजर, अरसा वल नजर, हदों पार ना होई, दर्द देख दुख आंदा, आपे विच आप, संगीत, विछड़ियां अखां, जितवल नजर उतवल यार, अज विछोड़ा अमर रस, पिंजरे पिया पंछी, वृक्ष रोशन आरा। हुण आपां गल करदे हां अगले काव्य संग्रह दी बई। वो है मटक हुलारे। जिहड़ा मटक हुलारे काव्य संग्रह है उस दे अंदर कश्मीर की सुंदरता के बारे बयान है बई। मटक हुलारे दे अंदर, मटक हुलारे इस विच की है? कश्मीर दी सुंदरता संबंधी बयान बई। कश्मीर की सुंदरता नाल संबंधित कवितावां ने, कश्मीर की सुंदरता नाल संबंधित कवितावां इस पुस्तक के 6 भाग ने। 4 लंबियां कवितावां लिली, निशांत बाग च नूर जहां, फरा मूरज दी विलकणी। लिली लंबियां कवितावां भाई, लिली, नूर जहां, फरा मूरज, फरा मूरज दी विलकणी दी विलकणी। लंबिया रचनावां ने लिली, नूर जहां, निशांत बाग च बई, निशांत बाग कश्मीर च है, निशांत बाग च। ये की ने? लंबिया रचनावां ने बई। लंबिया रचनावां इस दे विच अंकित है।
इस तो अलावा भी कई कवितावां ने बई। अवंतीपुरे दे खंडर, अनंत दी छू, इच्छा बल, इच्छा बल, टुकड़ी जग तो न्यारी, इच्छा बल, टुकड़ी जग तो न्यारी। हेलो जी, टुकड़ी जग तो न्यारी, मेरी जिंदे बई, मेरी जिंदे बई, मेरी जिंदे, मेरी जिंदे बहुत चंगी कविता है, मेरी जिंदे। उस तो बाद चढ़ चक के चक घुमानिया, यह भी बई कविता है जी, ये भी तुसी याद रखनी है। चढ़ चक के चक घुमानिया, सोने महिवाल तो सदके जानिया। एक कविता है जी अपनी 12वीं बोर्ड की जी किताब है उस दे अंदर है बई। भाई साहब भाई वीर सिंह के नाम के थले 3 कवितावां ने बई। इलम ते सब तो पहला ए चढ़ चक के चक घुमानिया, दूजी इलम ते अमल, तीजी समा बई। ये कवितावां ने तो ये जी कविता है वो मटक हुलारे दे अंदर है बई। मटक हुलारे है जो संग्रह उस दे अंदर है। इस दे अंदर होर भी कवितावां ने। कंबदी कलाई बई फेमस कविता है, कंबदी कलाई, ये भी फेमस कविता है जी। कंबदी कलाई पहला होंदी सी बई, सिलेबस के अंदर हुण नहीं है। गदक दा चश्मा, कृष्ण गंगा, कोई हरिया बूट रहो ही, ये भी वधिया कविता है। गुलमर्ग, चश्मा, अनंतनाग, विछुड़ी रूह, विछुड़ी कूंज, वैरी नाग दा पहला झलका, ये भी पहला होया करदी सी बई। वैरी नाग दा पहला झलका बई, वैरी नाग दा पहला झलका। और इस पुस्तक नूं भाई साहब नूं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर वालों सम्मानित किया हुआ है। इसनूं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर दे वालों सम्मानित किया हुआ है मटक हुलारे नूं। मटक हुलारे का जिहड़ा विषय है वो की है? कश्मीर, कश्मीर की सुंदरता संबंधित कवितावां ने। और इस पुस्तक के 6 भाग ने और इन लंबियां कवितावां भी लिखियां, छोटियां कवितावां भी लिखियां। जड़ियां लंबियां कवितावां ने वो है लिली, नूरजहां और फरमारूज, फरामूरज दी विलकणी ते निशांत बाग विच। और उस तो बाद अवंतीपुरे दे खंडर, अनंत दी छू, इच्छा बल, टुकड़ी जग तो न्यारी, कश्मीर दी सुंदरता, चढ़ चक के चक घुमानिया, कंबदे पत्थर, मेरी जिंदे, भाग भरी दे दर्शन, गंधक दा चश्मा, कृष्ण गंगा, कंबदी कलाई, कोई हरिया बूट रहे होरी, गुलमर्ग, चश्मा अनंतनाग दा बाई, विछोड़ी विछुड़ी रूह, विछुड़ी कूंज, वैरी नाग दा पहला झलका। कुछ जड़ियां महत्वपूर्ण कवितावां ने मैं लिखती है जिवें कि इच्छा बल, टुकड़ी जग तो न्यारी, मेरी जिंदे, चढ़ चक के चक घुमानिया, कंबदी कलाई, वैरी नाग दा पहला झलका जिहड़ा ए है। ते आपां नूं की करना है कि तुसीं इस चीज का खास ध्यान रखना है बई कि आपां नूं की कहते हैं कि एक तो कई बार पंजाब मास्टर कार्डर दे विच एवें कई बार पूछा गया बई हजे तक अपने की कहते हैं कि इत्थे नहीं पूछा बई किहड़ी कविता किहड़े संग्रह विच दर्ज है। हाँ ये जरूर पूछ लिता जाता है कि आ कविता किस कवि दी है, तो उहदे चों संभावना आ ही रहेगी कि आपां नूं जिहड़ी कविता पूछी जावे वो जिहड़ी कविता है वो अपने सिलेबस के अंदर होनी चाहिए है बई, या वो बहुत ही पॉपुलर होगी, बहुत ही प्रसिद्ध कविता किसी कवि दी पूछी जा सकती है, या फिर अपने 9वीं तो 12वीं के सिलेबस के अंदर होवे, BA के सिलेबस के अंदर होवे, तो उतों पूछ सकता है बई आ कविता किंदी है। तो आपां ध्यान च रखना, सब तो पहली गल तो आपां ये पता होना चाहिए है किहड़े बंदे दियां किहड़ियां रचनावां ने, वो किहड़ी धारा दा कवि है, उनदी मतलब जिहड़े आ संग्रह है उन्हां दा विषय की है, वो किस विषय का महारथी है, इन्हां बारे आपां नूं चंगी जानकारी है होनी चाहिए है। आपां कर रहे हैं थोड़ा विस्तार नाल चर्चा, ते इस कारण की कहते हैं कि हर एक चीज है जो शामिल करना चाहते हैं ताकि पेपर दे विच कुछ भी आपां नूं अजीब जा ना लगे बई। हुण बिजलियां दे हार, बिजलियां दे हार दे अंदर समा कविता है बई, समा। और कई बार इवें भी होंदा है, कई लिखारी की कहते हैं अपनी एक कविता जिहड़ी कि बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਛਾਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 1-2 ਰਚਨਾਵਾਂ 2-4 ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਰਚਨਾ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਰਸਦਾਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਈਂ ਲਈ ਤੜਪ, ਕੁਤਬ ਦੀ ਲਾਠ ਬਈ, ਕੁਤਬ ਮਨਾਰ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਤਰੇਲ ਦਾ ਤੁਪਕਾ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਰਜ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਆਲ ਉਡਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਖਿਆਲ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਭ ਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਈ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਬਈ, ਸਮਾਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਰਸਦਾਤਾ, ਸਮਾਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਰਸਦਾਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਤਬ ਦੀ ਲਾਠ ਬਈ, ਕੁਤਬ ਦੀ ਲਾਠ, ਤਰੇਲ ਦਾ ਤੁਪਕਾ, ਸਾਈਂ ਲਈ ਤੜਪ, ਸਾਈਂ ਲਈ ਤੜਪ ਬਈ, ਸਾਈਂ ਲਈ ਤੜਪ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਤਰੇਲ ਦਾ ਤੁਪਕਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਡੀਕ, ਉਡੀਕ, ਅਟਕ, ਅਣਡਿੱਠਾ ਰਸਦਾਤਾ, ਅੱਜ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਟੇਕ, ਆਪੇ ਦਾ ਕਾਦਰ, ਇਨਾਂ ਨੈਣਾ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੈਰਾਨ ਬਾਗ, ਸਾਈਂ ਲਈ ਤੜਪ, ਹਾਉ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਕਮਲ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਤਰੇਲ ਮੋਤੀ, ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਚੱਲੋ ਚੱਲੀ ਦੀ ਸੱਦ, ਜੀਨਤ ਬੇਗਮ, ਢੋਲਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਾ ਜਾ, ਡਰ ਡਠਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ, ਧੋਬੀ, ਪਦਮ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਬਹਾਰ, ਪੱਥਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਾਦ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ, ਫੁੱਲ, ਭੰਬੀਰੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਬੂਟੇ ਕੋਲ ਮਰਦ ਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਵਗੈਰਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ ਬਈ, ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ, ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਸੰਕਲਿਤ ਹੈ ਬਈ ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ, ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਤੇ ਰਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੀਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚੌਪਤਰੀਏ ਛਪਦੇ ਸੀ ਬਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਪਤਰੀਏ ਛਪਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛਾਪ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਈ।
रहस्यवादी कवितावां कंब दी कलाई दे अंदर बई। और कंब दी कलाई जिहड़ी फेमस कविता है उस दे अंदर भाई साहब भाई वीर सिंह जी नूं सुपना आंदा है भाई उन्हां नूं की कहंदे कि एक दिन वो अरसी छोह प्राप्त हो जाती है भाई, तो उनका पल्ला है जो उन्होंने हथ नाल खह लेंदा है और उन्होंने आनंद है जो प्राप्त होती है। आत्मा नूं की कहंदे है प्रतख रूप दे विच उन्होंने महसूस किया, वो जिहड़ा वर्णन है वो कंब दी कलाई दे अंदर है। तो उन्हां दी कलाई है जिवें उहदे विच कंबनी है जो वो पैदा होगी छोह तो मगरों। ये जिहड़ी चीज़ां है ये कंब दी कलाई दा सीगा भाई। रहस्यवादी कविता गुरु नानक आया, गुरु नानक आया ये भी कविता है बई जिहड़ी गुरु नानक आया जिहड़ा गीत है गुरु नानक आया बई। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। देखो अजकल तुम देख रहे होंगे कई की कहते कि कलाकारां ने ये भाई साहब भाई वीर सिंह दी की कहते हैं प्रसिद्ध रचना है गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। तो उन्होंने अपने तरीके नाल लिखी सी। अजकल के जिहड़े कलाकार सी उन्होंने अपने तरीके नाल भैया करता जिवें जानी शब्द है जानी ने चुरा लिया। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया फेमस की कहते हैं कि रचना सी भाई साहब भाई वीर सिंह दी। ते उसका की कहते लाहा लिता लोगों ने होर हजे भी अज के टाइम भी जो गुरपुरब या समागम होंगे है तो उस समय ये गीत पॉपुलर रहिंदा, उस टाइम भी सीगा बई। नसीरी नसीरी है जो 1 2 3 भागों में उन्होंने लिखी है। पीर बुद्धू शाह बुढ़न शाह नसीरी 3 भागों च 1 2 3 एवं करके 3 बार लिखी है बई कविता। पीर बुद्धू शाह पीर बुद्धू शाह ते इस विच होर भी कविता ने बई। बुढ़न शाह भी है, बुद्धू शाह के नाम नाल बुढ़न शाह है वह भी है बई। बुढ़न शाह गुरु नानक आया नसीरी पीर बुद्धू शाह बुढ़न शाह इन्हां दे नाम तो आप थोड़ा थोड़ा नाम नूं पढ़ लांगे, इन्हां देख लांगे तो आपां नूं पता लग जाएगा। देखो इहदे विच कोयल तोता फुंडे तोते इन्हां दी गल कीती है, कुदरत दा वर्णन प्रकृति वर्णन ज्यादा है। एवें कंब दी कलाई है, कंब दी कलाई दे विच जिहड़ियां कवितावां ने उस दे विच आपां नूं पता लग गया। देखो पीर बुद्धू शाह बारे गल है, बुढ़न शाह बारे गल है, नसीरी बारे गल है, गुरु नानक आया दे बारे गल है। दे जा दर्शन दीदार कलियां दी सुगंध नजर फुल पीलियां परियां बई इन्हां दी गल है। ते इत्थों आपां नूं पता लग जाता है कि इस दे विच रहस्यवादी रंग है वो ज्यादा है, रहस्यवादी रंग है वो गूढ़ा है भाई। कंब दी कलाई इस जिहड़ा संग्रह सी काव्य संग्रह इहदे विच आपां गल कीती गुरपुरां दे अवसरां ते समय समय धार्मिक गीत संकलित होंदे सी। पहला ट्रैक्टां दे विच खालसा समाचार अखबार भी छप जांदे सी भाई, बाद विच वो संग्रहित करके कंब दी कलाई जिहड़ा काव्य संग्रह है वो छापता। रहस्यवादी कविता गुरु नानक आया नसीरी पीर बुद्धू शाह बुढ़न शाह कोयल दी अरजोई अजिहियां कवितावां ने जो वो कंब दी कलाई दे विच शामिल ने। हुण उस तो बाद अगला बई कंत महेली, कंत सहेली नहीं बई कंत महेली 12 माह है बई। उन्होंने 12 माह भी लिखा है, उसका नाम की है कंत महेली। कंत महेली 12 माह लिखे है बई। ते 12 माह दे विच मैं तुहानूं जदों 12 माह करवाए सी गुरमत काव्य दे अंदर तां उस बारे दसिया सीगा बई 12 माह दे बारे। 12 माह दे विच की हुंदा है कि कोई पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका कह लो बई, उनका जिहड़ा प्रेमी है वो किथे चला जाता है दूर, घर वाला कह लो दूर यानी कि काम लई चला जाता है ते ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿਰਾਗ ਤੜਪਦੀ है और महीनों का वर्णन है उस तरीके नाल कीता जांदा सी और अखीर दे विच की कहंदे कि मिलाप हो जाया करदा सी। परंतु ये जिहड़ा है ये की है कि रहस्यवादी हैगा है, ये रहस्यवादी हैगा बई नव रहस्यवादी इहदे विच कवितावां है जिहड़ियां वो शामिल ने। ते जिहड़ा ये है 12 माह कंत महेली की है 12 माह है और चेत तो शुरू होकर फग्गण तक कंत महेली 12 माह है भाई। 12 माह वैसे अपने महीने चेत तो शुरू होंगे है, आ भी चेत तो शुरू है फग्गण ते खत्म होंगे है, आ भी फग्गण ते खत्म होंगे है भाई। चेत तो शुरू फग्गण ते खत्म। और 1950 दे विच लिखी गई सी। राग याद रखनी है भाई भैरवी ते कसूरिया राग है जो इसकी
राग है भैरवी ते कसूरिया। इन्हां रागां दी की कहंदे हैं कि इहदे विच वरतों कीती गई है और इसका जिहड़ा विशा है वह है आत्मा परमात्मा दे विछोड़े दा दुख है जो वो निरूपित किया गया है, दर्शाया गया है। आत्मा ते परमात्मा दे विछोड़े दा दुख, पति ते पत्नी दा दुख नहीं है, इत्थे आत्मा ते परमात्मा दे विछोड़े दा दुख बई। दुख है ओ दसिया गया है बई, इनका विषय है आ है। कंत महेली 12वां काव्य रूप दे विच लिखिया गया बई, 12वां काव्य रूप च याद रखना है। इस तो बाद चेत तो शुरू फग्गण तक राग है भैरवी ते कसूरिया और विषय है आत्मा ते परमात्मा दे विछोड़े की जिहड़ी गल है वो इस विच कीती गई है भाई। उस तो बाद अगे आपां चलदे हां। अगला जिहड़ा है श्री कलगीधर चमत्कार, चमत्कारां दी गल कर लीए। कलगीधर, गुरु नानक चमत्कार, अष्ट गुरु चमत्कार बई, ये जिहड़ियां चमत्कार रचनावां सी उस दे बारे भी गल कर लीए। परंतु जब पूछा जाए तो ज्यादा संभावना कविता भाग च है, कविता दे विचों कोई ना कोई प्रश्न है उनके काव्य संग्रह के बारे, उन्होंने विषय बारे, उन्होंने बारे ज्यादा पूछने की संभावना है। परंतु फिर भी आप इन्हों भी नाल लैके चलते हैं बई। श्री कलगीधर चमत्कार, क्योंकि आधुनिक कविता का यह बोधी कवि है बई। श्री कलगीधर चमत्कार, कलगियां वाला, इथों पता लग गया आपको कलगियां वाला कौन है। श्री कलगीधर चमत्कार बई, श्री कलगीधर चमत्कार यह पुस्तक है सन 1925 अंदर प्रकाशित हुई सी। इस पुस्तक के दो भाग है बई, पूर्वार्थ ते उत्तरार्थ। पूर्वार्थ के अंदर 56 ते उत्तरार्थ च है 48 साखियां बई, दो भाग पूर्वार्थ ते उत्तरार्थ, दो भाग है बई, पूर्वार्थ ते उत्तरार्थ। पूर्वार्थ च 56 साखियां, उत्तरार्थ च 48 साखियां बई। यह है श्री कलगीधर चमत्कार गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंधित। इहदे विच साखियां सी जिहड़ियां ओ तुहानूं दस दियां। उस तो बाद श्री गुरु नानक चमत्कार बई, इनका जिहड़ा संपादन है 1928 दे विच होया है। कुल 12 अध्याय है, 5 है जिहड़े पूर्वार्ध है और 7 है वो उत्तरार्थ है बई। गुरु नानक चमत्कार बई, गुरु नानक चमत्कार, इनके भी जेडे भाग ने बई, भाग किन्ने 12 अध्याय है। इस अध्याय किन्ने है 12, 5 पूर्वार्थ है बई। इनके भी जेडे पूर्वार्थ है वो है 5 और जेडे उत्तरार्थ है वो है 7। उत्तरार्थ किन्ने है 7, हो गए 12 बई। किन्ने हो गए 12 हो गए। ये जेडे पूर्वार्थ है जिन्हों 5 खंडा में वंडिया गया है, इनदे विच 54 साखियां ने। इनदे विच की है 54 साखियां और उत्तरार्थ इनदे विच है 41 साखियां बई, 41 साखियां। दोबारा फिर दस दिए, गुरु नानक चमत्कार, गुरु नानक चमत्कार संपादन 1928 विच कुल 12 अध्याय है। जेड़ा पूर्वार्थ है बई, पूर्वार्थ विच 5, उत्तरार्थ च 7 और 5 12 अध्याय हो गए। हुण इन्हां अध्यायां दे अंदर साखियां जिहड़ियां उन्हां दी गल आपां कर लईए। जिहड़े पहले 5 अध्याय है उन्हां विच है 54 साखियां और बाद वाले जिहड़े 7 अध्याय ने उन्हां विच है 41 साखियां पई। हुण उस तो बाद आपां गल करदे हां अगले दी, श्री अष्ट गुरु चमत्कार। जे किथे भी कोई दिक्कत आ रही है तो तुसी मन्नू चैट च लिख के दसो बई, उस समस्या का तत्काल हल कर देवांगे। हुण आपां गांह नूं तुरदे हां। श्री अष्ट गुरु चमत्कार 1952 च प्रकाशित है भाई। इस पुस्तक दे विच गुरु नानक देव जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं छड्ड के, गुरु नानक ते गुरु गोबिंद सिंह नूं छड्ड के बाकी दे 8 गुरे साहिबां दियां साखियां संकलित है भाई। परंतु भाई साहब
चौथे गुरु रामदास तक ही काम कर सके। उस तो बाद वाला काम है वो डॉक्टर बलबीर सिंह ने किया बई। अष्टगुरु चमत्कार नाम तो ही देखो, श्री अष्टगुरु चमत्कार बई, श्री अष्टगुरु चमत्कार नाम तो ही स्पष्ट है। एंड पहले और 10वें गुरु नहीं हन, गुरु नहीं बई। 2 तो लैके 9 मतलब बाकी जेड़े बच गए, पहले और 10वें गुरु नहीं है, बाकी जेड़े बच गए वो गुरु है। ठीक है जी, एक तो लैके 10 गुरु, एक पहले गुरु और 10वें गुरु नहीं हन। और एंड विच की है दूजे गुरु तो लैके 9वें गुरु तक। कहण दा भाव इन्हां नूं छड्ड के, पहले और 10वें गुरु नूं छड्ड के बाकी 8 गुरुआं दी एंड विच साखियां दर्ज ने। और इन दे विच भी की है, सिर्फ गुरु रामदास जी तक, गुरु रामदास जी तक ही काम कर सके भाई। गुरु रामदास जी तक है जेड़ा काम है इस दे विच भाई वीर सिंह ने किया भाई। दूजे गुरु, तीजे गुरु, चौथे गुरु रामदास गुरु यानी 3 गुरुआं दे बारे भाई गुरदास जी ने लिखिया। और उस तो बाद वाले जेड़े गुरु सी उन्हां बारे डॉक्टर बलबीर सिंह ने लिखिया। डॉक्टर बलबीर सिंह ने लिखिया है भाई। इस तरीके नाल इस नूं की कहंदे है कि डॉक्टर बलबीर सिंह ने पूर्ण किया भाई। डॉक्टर बलबीर सिंह ने पूर्ण किया है भाई। हाँ भाई, किसी और दे भी दिक्कत आ रही हो दसो, फिर आप किसी होर दे जिस दे बढ़िया चल रहा ओके SMS करो भाई। सिर्फ एक बंदे दे नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाकियां दे सही चल रहा तो ओके करो, फिर आप क्लास अगे तोड़िए। ठीक है जी, हाँ मैं ठीक है जी, हाँ ओके है। हाँ अष्टगुरु चमत्कार भाई, अष्टगुरु चमत्कार की है 1952 प्रकाशित होया सी। गुरु नानक देव जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी है। इस नूं छड्ड के बाकी 8 गुरु साहिबान है उनदियां साखियां ने गुरु रामदास जी तक, यानी कि दूजे, तीजे और चौथे पातशाह। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी तक है जो भाई साहब भाई वीर सिंह ने लिखिया। और उस तो बाद वाले गुरुआं बारे डॉक्टर बलबीर सिंह ने लिखिया। और ये सारे दा सारा काम है जो वो पूरा करता भाई। अष्टगुरु चमत्कार है वो पूरा करता भाई। हुण उस तो बाद अगला मेरे साइयां जीओ, मेरे साइयां जीओ भाई। पंजाबी दा पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जेतू रचना मेरे साइयां जीओ। मेरे साइयां जीओ। लो जी, पहला पंजाबी दा पहला बई साहित्य अकादमी जेतू, भाषा साहित्य अकादमी जेतू। पहला अवार्ड भारती भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार है जेड़ा वो मिलिया सी मेरे साइयां जीओ नूं। भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार पाई कदों मिलिया 1955 के अंदर। कदों मिलिया 1955 अंदर। जड़ी आ रचना हैगी है भाई साहब ने कदों लिखी 1953। 1953 भाई साहब ने इन्हू रचना लिखी और 1955 के अंदर पहला जेड़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो इस रचना नूं मिलिया। और भाई साहब दे जिउंदियां जी प्रकाशित हुई आखिरी पुस्तक है भाई। भाई साहब दे जिउंदियां जी प्रकाशित हुई आखिरी पुस्तक। 72 कवितावां ने इस दे विच, 72 कवितावां, 72 कवितावां ने। मेरे साइयां जी वो नाम तो स्पष्ट है भाई, रहस्यवादी इहदा नाम तो स्पष्ट है गया भाई। 72 कवितावां हैं जिन्हां विचों 11 रुबाइयां ते 9 छंदबंद कवितावां तो अलावा
मुक्त छंद विच लिखिया हुई कवितावां 20 संकलित ने। रुबाइयां भी है बई, इस किनिया है रुबाइयां भी है 11, 9 छंदबद्ध है। चलो रहन दो, 9 याद करना। रुबाइयां भी है, छंदबद्ध कविता भी है, ते खुली कविता मुक्त कविता भी है बई, मुक्त कविता भी है इस दे अंदर, मेरे साइया जीओ दे अंदर बई। ये कुछ है ते इस चीज को ध्यान रखना है। फिर उस तो बाद अगे चलते हैं बई, प्रीत वीणा। अगली वाल गल करिए बई, प्रीत वीणा। प्रीत वीणा च बई, प्रीत वीणा यह एक लंबी कविता है जो भाई साहब ने 1928 विच गुलमर्ग विखे लिखी पई। लंबी कविता है, किथे लिखी है भाई? गुलमर्ग विखे लिखी, किथे? गुलमर्ग विखे लिखी है भाई। और यह एक लंबी कविता है जो भाई साहब ने 1928 विच गुलमर्ग विखे लिखे। इसनों सितंबर 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। इस कविता विच की है, आत्मा परमात्मा दे बिरह दुख ਅਤੇ सुहाग सहयोग ਨੂੰ पेश किया गया है बई। आत्मा परमात्मा दा बिरह दुख बई, आत्मा परमात्मा दा बिरहा दुख ते सहयोग बई, सहयोग संजोग कुछ भी सहयोग बारे दसिया। यह प्रीत वीणा, प्रीत वीणा की है, एक लंबी कविता है और इस दे अंदर की है, आत्मा परमात्मा दा बिरहा दुख ते उनदा दा संजोग है जो वो दसिया है भई। जे सन याद करो, तारीख याद करो, सन याद करो तो सारे करो, या तुहानू जिहड़े बहुत इंपोर्टेंट लगन वो कर लियो, जे बई छड्डो तो फिर सारे छड्ड दिओ, ताकि एवें मन च गिला ना रहे बई याद किया सी तो गलत हो गया। तो मेरा तो फर्ज है बई, मैं हर कोई सन है जो दसांगा, तुसी उस बारे खुद डिसीजन ले लियो सन दे बारे बई। अगे है निक्की गोद विच, ऐसी प्रीत वीणा। अगली जिहड़ी रचना है काव्य संग्रह, उस दे बारे गल करिए। निक्की गोद च इस विच की है, प्रकृति की खूबसूरती विच नूरी प्रीतम दे दीदार नूं माणिया। खूबसूरती, प्रकृति की जिहड़ी खूबसूरती है, प्रकृति नूं देखदा है और उस विच उस परमात्मा दे दर्शन करदा है बई। निक्की गोद विच बई, मैं उस प्रकृति की गोद दे विच, उस परमात्मा ने प्रकृति बनाई है, उसमें परमात्मा दे गोद दे विच हैगा। इस तरीके नाल महसूस है जो वो भाई साहब भाई वीर सिंह जी कर रहे ने। अगली जड़ी रचना है उस दे विच आपां चलदे हां बई। निक्की गोद च, निक्की गोद विच बई, निक्की गोद च इस विच प्रकृति की खूबसूरती विच नूरी प्रीतम दे दीदार नूं प्रकृति की गोद च नूरी प्रीतम दा दीदार, प्रकृति की गोद विच नूरी प्रीतम दा दीदार उस नूं माणिया है भाई। अगली है राजा लखदाता सिंह, नाटक है पर फिर भी थोड़ा जा कवि की गल कर रहे हैं, पर नाटक भी लिखा उस दे बारे क्यों खास क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सिक्खी सुधार का पहला नाटक है भाई। सिक्खी सुधार का पहला पंजाबी नाटक राजा लखदाता सिंह। इस कारण की है कि भाई साहब भाई वीर सिंह के बारे आ चीज दसनी है, जरूरी बन जाती है। राजा लखदाता सिंह बई, लखदाता सिंह राजा है उस दे बारे है बई, जैसे सूरत सिंह बारे है, एवं राजा लखदाता सिंह बारे है। 5 अप्रैल 1910 की रचना है बई, और यह जो नाटक है सिक्खी सुधार का पहला नाटक। सिक्खी
सुधार दा पहला नाटक भाई, सिक्खी सुधार दा पहला नाटक है, तुसी याद रखना है, राजा लखदाता सिंह। भाई साहब भाई वीर सिंह ने, भाई साहब भाई वीर सिंह का जिहड़ा गुदारी गीत संग्रह सी उनका अंग्रेजी च अनुवाद किया सी प्रोफेसर पूरन सिंह ने भाई, गुदारी गीत संग्रह का। लो जी, गुदारी माने गुजारी, गुदारी गुजारी भाई, गुदारी गुजारी गीत संग्रह का अनुवाद सी जिहड़ा अंग्रेजी च अनुवाद भाई, अंग्रेजी अनुवाद किन्ने किता? आलो जी, किता किन्ने? प्रोफेसर पूरन सिंह। प्रोफेसर पूरन सिंह ने गुदारी गीत संग्रह का अंग्रेजी च अनुवाद किया। बुलबुल दे राही, बुलबुल ते राही, देखो राही दी बुलबुल दे नाल गलबात। पुष्पावती चंदावत, एक ही है लमेरी संवादात्मक रचना है। बुलबुल ते राही, पुष्पावती ते चंदावत, ये याद रखना है भाई। थोड़ियां जड़ियां कवितावां ने उस दे बारे थोड़ी खुली चर्चा कर ली है, होर भी भाई साहब भाई वीर सिंह दियां कवितावां दे बारे, उनदियां रचनावां दे बारे, नाटक दे बारे, गल्प दे बारे आपां सारी ही चर्चा की। और थोड़ी जी खुली चर्चा, कोई अक्ष है जो उभर के आवे, कुछ इंपोर्टेंट गल्लां, कुछ गल्लां जो की शामिल कीतियां गईयां ने, कुछ खास गल्लां ने, उन्हां नूं आपां लैने हां। बुलबुल ते राही, लो भाई, बुलबुल ते राही एक तो हो गया आ, बुलबुल ते राही। दूजा हो गया पुष्पावती चंदावत। आलो जी, पुष्पावती ते नूं मैं कट देना पर समझाने लई, पुष्पावती ते चंदावत भाई, पुष्पावती चंदावत। हुण बुलबुल दी राही दे नाल पुष्पावती दी चंदावत दे नाल गलबात, कहण दा भाव संवाद, ये जिहड़ियां कविता ने संवादात्मक कविता है, दोनों जिहड़ा आपसी संवाद है उसदी कविता है भाई। भाई साहब भाई वीर सिंह दी कविता च प्रेम, प्रकृति चित्रण ते कुदरत प्यार बहुत ज्यादा है भाई। प्रेम, अध्यात्मक प्रेम, प्रेम और दूजी गल प्रकृति चित्रण, प्रेम, प्रकृति चित्रण, कुदरत प्यार, कुदरत प्यार, कादर नूं प्यार, ये इस दियां कवितावां दा मैन तुरा है भाई। कुछ रहस्यवादी 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 कवितावां भी इन्हें लिखियां ने, कुछ नहीं काफी रहस्यवादी कवितावां भी लिखियां ने। और इनू इनकी तुलना है जिहड़ी वर्ड्सवर्थ नाल कीती है भाई, अंग्रेज कवि सी, अंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ, उस नाल कीती है। क्यों तुलनाया है उसनू? क्योंकि वह भी कुदरत का कवि सीगा ते भाई साहब भाई वीर सिंह सी, वह भी कुदरत का कवि सीगा। पंजाबी साहित्य का वर्ड्सवर्थ, ये तुहानू पहला मन लगता है कल वाली क्लास से दसता, पंजाबी साहित्य का वर्ड्सवर्थ वो है भाई साहब भाई वीर सिंह। देखो अरबी फारसी तो आए रुबाई काव्य रूप नू तुरताई छंद दे विच वरतदा है भाई साहब भाई वीर सिंह। और रुबाई काव्य रूप का रिवाज भाई साहब ने पंजाबी च चलाया है भाई। सब तो पहला पंजाबी दे अंदर रुबाई काव्य रूप वरतिया, सब तो पहला रुबाई लिखनी शुरू की भाई, रुबाई लिखण दी पिरत पाई किन्ने पाई? भाई साहब भाई वीर सिंह ने, भाई वीर सिंह रुबाई लिखण दी पिरत पाई भाई। इनू तुरताई छंद भी वो कहंदे ने, कई विद्वान इसनू तुरताई छंद भी कहंदे हैं। वैसे रुबाई की है कि फारसी चंद की शुरुआत हुई सी भाई, अरबी भाषा का शब्द है रुबा, रुबाई है और रुबा तो बनया है। रुबाई लिख के देख लेने भैया, देखो रुबाई लिखा है ना, ये किस तो बनया? ये रूबा तो बनया भाई। रूबा तो, रूबा का मतलब ही चार होंदा है। रूबा का मतलब की होंदा है? चार।
चार तुक्कां दे कारण इसका नाम हो गया रुबाई। परंतु भाई साहब ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੁਬਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 28 ਦੇ ਤੋਲ ਦੀਆਂ, 16 + 12 28 ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਵਈਏ ਦੇ ਤੋਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਰੁਬਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਔਰ ਤੀਜੇ ਚ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਚ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੀਜੇ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਚੌਥੇ ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੰਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਬਾਈ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੁਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਈ, ਰੁਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੁਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬਈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣੀ ਬਈ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਹੈ ਬਈ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਦੀ ਬਈ, ਚੂੜਾਮਣੀ ਦੀ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਨੇ ਮੁਕਟਮਣੀ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ, ਇਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਕਟਮਣੀ, मुकुटमणि दी उपाधि दिती है। और मौला बख्श कुस्ता कहता है टैगोर ते इकबाल दे बराबर है। मौला बख्श कुस्ता कहता टैगोर ते इकबाल दे बराबर। तुहानू सब दे याद रखने पैणगे बई, चूड़ामणी, पूरन सिंह चातरक, मुकुटमणी, कुस्ता, टैगोर ते इकबाल दे बराबर। सुरेंद्र सिंह कोहली नवीन कविता दा मोढी कहंदा है इहनू, सुरेंद्र सिंह कोहली नवीन कविता दा मोढी, नवीन कविता दा मोढी है वो इसनू कहंदा है। उस तो बाद डॉक्टर दीवाना सिख पुनर जागृति दा थंब बई। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना सिख पुनर जागृति का थंब, उसनू कहंदा भाई साहब भाई वीर सिंह है वो सिख पुनर जागृति का थंब है, पिलर है भाई, पिलर थंब है। हुण उस तो बाद जरा अगला कवि है प्यारा सिंह पदम, आधुनिक पंजाबी साहित्य का पिता। प्यारा सिंह पदम की कहता है, आधुनिक पंजाबी साहित्य का पिता बई। प्यारा सिंह पदम कहता जी आधुनिक पंजाबी साहित्य का पिता है। संत सिंह सेखों कहता सिख धर्म के भावां ते सिद्धांतां दा पेशकार। संत सिंह सेखों की कहता जी, हिंदी भी सुनो। संत सिंह सेखों, संत सिंह सेखों ने क्या है, सिख धर्म के भावां ते सिद्धांतां दा पेशकार। सिख धर्म दे भावां ते सिद्धांतां दा पेशकार बई, पेशकार है, इन्हें पेश किया है। हुण आपां की देखते हैं कि देखो सब दियां की कहंदियां, सब ने जो भाई साहब भाई वीर सिंह नूं उपाधियां दी हैं उनका की कहंदे आपां ध्यान रखना है बई। पूरन सिंह चूड़ामणी बई, चूड़ामणी
जिहदे जनानी दे चूड़ा पाया होवे वो पूर्ण है बई, और जे चूड़ा नहीं पाया तो समझो है पूर्ण है, क्योंकि उनका पति नहीं गा। चूड़ामणि जे चूड़ा पाया है तो पूर्ण है, जे चूड़ा पाया होया तो की है पूर्ण है बई, चूड़ा पाया होया तो पूर्ण है बई। और चातरिक सीगा वो धनीराम चातरक है, ਜਿਹੜਾ ਧਨੀਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਟ ਮਣੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਕਟ ਮਣੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਕੁਸਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਸਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਗੋਰ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਸਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸਤਾ, ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਗੋਰ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ, ਕੋਹਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਨ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੋਢੀ, ਨਵੀਨ ਕੋਹਲੀ ਭਈਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨ ਕੋਹਲੀ, ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਸੁੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਬਈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਸੁੰਦਰ ਕੋਹਲੀ, ਨਵੀਨ ਨਵੀਨ ਕੋਹਲੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਵੀਨ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੋਢੀ, ਨਵੀਨ ਕੋਹਲੀ, ਨਵੀਨ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਹਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ। ਦੀਵਾਨਾ ਬਈ ਦੀਵਾਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਸਿੱਖ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਥੰਮ, ਸਿੱਖ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਥੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਪਿਤਾ ਪਦਮ ਬਾਈ, ਪਿਤਾ ਪਿਆਰਾ, ਪਿਆਰਾ ਪਿਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਈ, ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਤਾ, ਪਿਆਰਾ ਪਿਤਾ। ਪਿਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਿਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਪਿਤਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਆ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੇਖੋਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਭਈਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰ, ਸੰਤ ਸੇਖੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੰਤ ਸੇਖੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਲਿਓ ਭਈਆ, ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਹੋਣ ਸਿੱਧੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੋੜ ਕੇ ਯਾਦ ਹੋਣ ਜੋੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰੰਤੂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਪਈਏ ਮੁਕਟਮਣੀ ਕਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚ ਰਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਰਲਗੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੱਟੇ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡਣੇ ਪਏ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਚਮਾ ਚ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹ ਲਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੂੜਾ ਬਈ ਚੂੜਾਮਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਾਤਰਿਕ ਦਾ ਮੁਕਟਮਣੀ कहता ਸੀ, ਚਾਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚਾਤਰਿਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੁਕਟਮਣੀ ਕਿਸਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਸਤਾ ਨੇ ਟੈਗੋਰ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੁਸਤਾ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੁਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੁਸਤਾ। ਔਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਸਤੇ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਟੈਗੋਰ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਿਓ ਕੁਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੈਗੋਰ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਭਈਆ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੀਨ ਕੋਹਲੀ, ਨਵੀਂ ਕੋਹਲੀ ਬਈ, ਨਵੀਂ ਕੋਹਲੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਬਈ, ਨਵੀਨ ਕੋਹਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸਿੱਖ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਥੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਪਿਆਰਾ ਪਿਤਾ, ਪਿਆਰਾ ਪਿਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਬਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਆਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਹੀ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ। ਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰ ਲਏ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੰਤ ਸੇਖੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬਈ ਸੰਤ ਸੇਖੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਈ ਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮਾਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ।